हेलो 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 अतुल थोड़ा मैं एसी स्ट्रॉन्ग करना सो जस्ट अ सेकंड पब्लिक गर्म हो रहा है स्ट्रॉन्ग कर ओके गेट सीटेड पब्लिक चलिए शुरू हो जाता है गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स we finished cost sheet yesterday. We are starting off with a new chapter today, material cost. A chapter might sound very easy, but if you prepare on your own, it will take about 3-4 hours because there are a lot of unwanted things. So if we make it together, we can finish it off in about 1 hour's time. So let's kickstart with this. So I made a quick synopsis of what is content of the chapter and some few questions. I'll be sharing them on Telegram, Ekatvam Academy. There is a channel on Telegram. The link might be given there in the description of the YouTube or I don't know, whatever. So yesterday's file of cost sheet, both the files I have shared. There will be 2 files for each chapter. One is the concept and the other is a questions. So without wasting a time, let's kickstart. So yesterday we understood that there is a direct cost and there is an indirect cost. If a cost can be linked easily to a cost object, it is going to be called as what? Direct cost. So first, what we are going to understand in this chapter is a direct material. Not about indirect material. Indirect material is going to be called as a overheads. All indirect costs are overheads. So what is a direct cost or what is a direct material? Materials, the cost of which can be directly attributable to the end product, to the finished product. ये end product को हम क्या बोलते हैं बच्चों? I want a reply. इसको बोलते हैं cost object. Finished product बोल रहे हैं. So we call it as a cost object. So if we can link a cost to the cost object in economically feasible way, मतलब without wasting too much of time, you should be easily able to link a cost to cost object. बहुत बार ऐसा होता है कि cost can be linked to a cost object, but after spending a hell lot of time. Now that is not direct cost. It is going to be a indirect cost. Take an example. In case of Ekatvam, what are the cost object? I say 11th standard, 12th standard, foundation, inter, final are cost object. Or within that even let's say each subject becomes a cost object. 11th accounts, 11th maths, like that, 12th account, 12th maths, foundation subjects. Imagine electricity that we use in a classroom. Can it be linked to the individual cost object? Very difficult. But if I decide I can, like what, one person will be there in front of the meter. Before we start 11th accounts class, he notes down how much is units. 11th account class ends, professor calls that person, my class is over now, stop meter. He notes down the reading. Then maths professor comes, he says, oh, maths is starting, note down the reading or send me the screenshot. Then imagine like this, can we apportion the cost to a cost object? Yes, we can, but is it going to be in an economically feasible manner? Is it going to be a rational manner? No. तो हम क्या करेंगे, हर लेक्चर के पहले नोटिंग करके रखेंगे और फिर टोटल इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो आएगा वो यूनिट्स के प्रोपोर्शन में डिवाइड करेंगे. हर क्लासरूम के लिए अलग मीटर, वो भी इलेक्ट्रिसिटी मीटर फॉर एवरी क्लासरूम इज सेपरेट. बच्चों, allocation of cost to the cost object in this manner will be very cumbersome, difficult. So hence direct cost is which can be attributed easily to the cost object. So in a very simple language,
आपका जो बिल ऑफ मटेरियल रहता है, बिल ऑफ मटेरियल में जितने भी रॉ मटेरियल के आइटम्स आप लिखे रहेंगे वो क्या रहेंगे? डायरेक्ट मटेरियल रहेंगे, वो इनडायरेक्ट मटेरियल नहीं कहलाएंगे. So it varies with the volume of output. Generally speaking, direct material is going to be a variable cost. कल ही मैंने बोला था direct cost का मतलब ये नहीं है कि variable cost है, but generally a large chunk of direct costs are going to be variable cost. So wood in case of a furniture, gold in case of a jewelry, paper in case of books is going to be direct material. Anything which is not a direct is going to be what? Indirect material. The material which is not attributable to a particular product is an indirect material. So in this chapter we are going to talk about a direct material. तो अब एग्जाम में क्या क्या टाइप्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, स्पेसिफिकली मैंने 8 पॉइंट्स को कवर किए, उसमें से ये फर्स्ट पॉइंट हो गया और 7 पॉइंट लर्न करना है हमको, बस दैट्स इट. वही बोलता हूं, आप खुद रिवीजन करोगे ना तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर वर्ड बाय वर्ड आप बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे. यहां पर वो स्पीडीली हो सकता है. एंड यू शुड जस्ट गो थ्रू द questions and answers that I will share with you people. तो कल के मैंने क्वेश्चन आंसर्स दिए थे, उसमें से कुछ आपने सिर्फ ऑडिट करना चाहिए, जिस अगर टाइम आपके पास लिमिटेड है तो. हाँ, पब्लिक इतना इलिटरेट है कि उसको समझ आने कहां पे दिया. मैंने 4 बार कल भी बोला था, आज भी लेक्चर के शुरुआत में बोला, यूट्यूब के वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा एकोतम एकेडमी का. उस लिंक पे जाके क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पे जाके सब्सक्राइब करिए, वहां पर आपको फाइल्स में कहीं ना कहीं तो दिखता होगा. मेरे हिसाब से मैंने कल लेक्चर के बाद इमीडिएटली शेयर किया था. सो एक जगह पे रहेगा वैल्यूएशन ऑफ लैंडेड कॉस्ट. दैट इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑन विच यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन. व्हेनेवर यू परचेस अ मटेरियल वी हैव टू कैलकुलेट इफेक्टिव प्राइस ऑफ अ मटेरियल टू बी एंटर्ड इन रिसिट्स कॉलम ऑफ स्टोर्स लेजर. कौन सर, जब आपने मटेरियल प्रोक्योर किया तो आप स्टोर्स लेजर बनाओगे, स्टोर्स लेजर में रिसिट्स कॉलम रहेगा, वो रिसिट्स कॉलम में आप क्वांटिटी रेट रुपीस लिखते हो. अरे याद करो, क्वांटिटी रेट रुपीस लिखते हो कि नहीं लिखते हो आप? कहां पे लिखते हो? रिसिट्स कॉलम में. उधर रेट क्या लिखोगे? आर यू गोइंग टू राइट अ परचेस प्राइस? नो, you are not going to write just the purchase price. Along with the purchase price, there are a lot of incidental costs which you need to consider. And then only you will be able to write the rate in purchase. तो वो रेट जो है वो क्या है देखते हैं. कुछ चीजें इंक्लूड करनी है, कुछ चीजें एक्सक्लूड करनी है. बेसिक परचेस प्राइस ऑब्वियसली वो तो इंक्लूड होगा. दिस इज वैल्यूएशन ऑफ लैंडेड कॉस्ट और मटेरियल रिसीव्ड. परचेस प्राइस ठीक है. एड इंश्योरेंस चार्जेस. ये कौन सा इंश्योरेंस होगा बच्चों? ट्रांजिट इंश्योरेंस. बच्चों गुड्स एक बार वेयरहाउस में आ गए तो वेयरहाउस में या स्टोर्स में जो मटेरियल रहता है उसका भी इंश्योरेंस लिया जाता है. दैट इंश्योरेंस इज अ पीरियड कॉस्ट. दैट इंश्योरेंस इज नॉट अ प्रोडक्ट कॉस्ट. तो वेयरहाउस में जो माल है उसका इंश्योरेंस आप नहीं कंसिडर करोगे. तुमको नोटिंग करने के लिए मतलब बोलना चाहिए सुबह सुबह, दिमाग नहीं चलता तुम्हारा. ट्रांजिट इंश्योरेंस इज डिफरेंट. वेयरहाउस के अंदर जो गुड्स है उसका इंश्योरेंस अलग है. कमीशन एंड ब्रोकरेज इफ एनी यू पेड टू अ ब्रोकर. या नॉर्मल रियल लाइफ में जब आप गुड्स इंपोर्ट करते हो तो एक कमीशन, कस्टम्स का एक एजेंट अपॉइंट किया जाता है, CHA बोलते हैं. कस्टम्स में हैंडलिंग करता है गुड्स का पोर्ट पे. तो CHA का जो कमीशन होता है वो कमीशन आप यहां पे इंक्लूड करोगे. फ्रेट जो भी है वो भी इंक्लूड किया जाएगा. कंटेनर, हाँ नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. कॉस्ट ऑफ कंटेनर. अगर आपके सप्लायर ने मटेरियल कंटेनर में भेजा है, कुछ पैकिंग के अंदर भेजा है, तो कंटेनर की कॉस्ट इंक्लूड की जाएगी इफ इट इज नॉट returnable. Then only cost of container will be treated as part of landed cost. कंटेनर का कॉस्ट कुछ समझा गया? अगर कंटेनर रिटर्नेबल है तो then it is not a cost, assuming you are going to return it back. हाँ, लेकिन ऐसा होता है सप्लायर ने आपको कंटेनर के साथ मटेरियल भेजा, कंटेनर के चार्जेस लगाए 100 रुपीज पर पैलेट.
तो जो रहता है उसको पर कंटेनर, माय मिस्टेक, पर कंटेनर 100 रुपीज पर कंटेनर। सप्लायर बोलता है तुम एक हफ्ते में इसको वापस कर सकते हो, वापस किया तो 80 रुपीज पर कंटेनर आपको क्रेडिट मिलेगा, रिफंड मिलेगा। आपकी कॉस्ट कितनी बन गई? 20 रुपीज पर कंटेनर आपकी कॉस्ट बन गई। तो कंटेनर यू विल कंसिडर एज अ कॉस्ट ओनली इफ इट इज नॉट रिटर्नेबल। वेस्टेज ड्यू टू नॉर्मल रीजंस, ड्यूरिंग अ ट्रांजिट नॉर्मल लॉस हो सकता है। नॉर्मल लॉस की वजह से आप क्या करोगे? बाकी गुड्स का प्राइस क्या करोगे? इंफ्लेट करोगे। कैसे? वो नीचे मैंने लिखा है अलग से, नॉर्मल लॉस इंपॉर्टेंट है इसलिए। ड्यूटीज एंड टैक्सेस फॉर विच नो इनपुट क्रेडिट इज अवेलेबल। इफ इनपुट क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल इट विल बिकम कॉस्ट। अब एग्जाम में देते नहीं है तो आपको अज्यूम करना है इफ इट इज अ जीएसटी input credit is available by default. If it is a custom duty, you have to assume input credit is not available for CA exams. GST आ गया तो input yes, और customs आ गया तो no input credit. So depending on logically question में देना चाहिए, ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था मेरे हिसाब से उस टाइम पे। अभी अजम्पशन देना चाहिए इंस्टीट्यूट ने। तो कस्टम ड्यूटी हम इंक्लूड करेंगे प्रोडक्ट के कॉस्ट में। अब बोले सर डिस्काउंट का क्या होता है? गुड जब परचेस किए तो परचेस के टाइम पे ही जो डिस्काउंट दिया है सप्लायर ने, वो डिस्काउंट तो ऑलरेडी माइनस होके ही आपका क्या आएगा? परचेस प्राइस विल बी आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। द डिस्काउंट गिवन एट द टाइम ऑफ परचेस, दिस इज विच प्राइस? आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। बट आप अगर टाइम के पहले पेमेंट करते हो सप्लायर को तो उसके लिए भी सप्लायर आपको डिस्काउंट दे सकता है। उस डिस्काउंट को क्या बोलते हैं हम? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इज नॉट गोइंग टू बी एक्सक्लूडेड, रिमेंबर दैट। क्यों? इट इज अ फाइनेंस इनकम, इट इज अदर इनकम directly credited to profit and loss account. So what I'm saying, cash discount is ignored. मतलब माइनस नहीं करना है, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं कहीं पे, क्योंकि ऐड ही नहीं किया तो माइनस क्यों कर रहे हो ना। कैश डिस्काउंट इज गोइंग टू बी इग्नोर्ड। मैंने आप बोले सर प्लस माइनस किधर भी नहीं लिखा। अरे ससुरे लिखू क्यों? अगर मैंने उसको ऐड ही नहीं किया है कैश डिस्काउंट को तो माइनस क्यों करूं? सो इंश्योरेंस चार्जेस हमने ऐड कर लिया, कमीशन ऐड कर लिया, फ्रेट इनवर्ड ऐड कर लिया, कंटेनर का कॉस्ट आ गया, वेस्टेज ड्यू टू नॉर्मल रीजंस, दैट इज नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस की वजह से हम कॉस्ट क्या करेंगे बच्चों? इन्फ्लेट करेंगे। कैसे? हैव पेशेंस। टैक्सेस ऐड करेंगे, कौन से? जिसका इनपुट क्रेडिट नहीं है। क्या चीजें माइनस करनी है? डिस्काउंट, रिबेट, सब्सिडी, वो मैंने लिखा ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। रिबेट अगर आपको कुछ मिल रहा है या गवर्नमेंट से कुछ डिस्काउंट है तो आप क्या करोगे? उसको माइनस करोगे। दिस इज ओनली फॉर ट्रेड डिस्काउंट, नॉट अ कैश डिस्काउंट। अगर आपने ऊपर परचेस प्राइस ऑलरेडी आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट लिया है तो वापस माइनस मत करना, मतलब दो बार माइनस मत करना। ऊपर का परचेस प्राइस अगर आपने विदाउट डिस्काउंट लिया तो डिस्काउंट माइनस करो, ठीक है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस फॉर विच क्रेडिट इज अवेलेबल, उसको माइनस करने का। कब माइनस करने का? इफ एडेड अबाव इन परचेस प्राइस। फॉर एग्जांपल परचेस प्राइस था 130 रुपया पर यूनिट, उसके ऊपर 10% जीएसटी था 13 रुपए का। 130 प्लस 13 143 अगर आपने ऊपर कंसिडर किया है तो नीचे जाके 13 रुपया माइनस करो। अगर आपने ऊपर ही लेते टाइम पे 130 लिया है तो नीचे वापस जीएसटी माइनस मत करना, डबल डिडक्शन हो जाएगा। डबल डिडक्शन नहीं मिलेगा, समझा ना। तो बेसिकली क्या बात करनी है? इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर अवेलेबल है तो वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, अदरवाइज इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ कॉस्ट। पेनल्टीज एंड चार्जेस आर एक्सक्लूडेड। अगर आपने ऊपर ऐड किए होगे तो उनको एक्सक्लूड करना, तो इसलिए मैंने क्या लिखा है? डिडक्शन लिखा है, ऑब्लिक क्या लिखा है मैंने? एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन मतलब एक्सक्लूड करना, माइनस मत करना। ये क्यों एक्सक्लूड किया? लॉजिक बोलो बच्चों। एबनॉर्मल कॉस्ट है। ऑल एबनॉर्मल कॉस्ट आर नेवर गोइंग टू बिकम प्रोडक्ट कॉस्ट, दे आर गोइंग टू बी पीरियड कॉस्ट। ये जो मटेरियल कॉस्ट है ना बच्चों, ये लैंडेड कॉस्ट क्या है? बोलो, अरे रिस्पॉन्स चाहिए। लैंडेड कॉस्ट इज अ प्रोडक्ट कॉस्ट टू बी इंक्लूडेड इन द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अब एबनॉर्मल कॉस्ट जो भी होता है वो सारा का सारा एबनॉर्मल कॉस्ट हम क्या करते हैं?
एक्सक्लूड कर देते हैं, P&L को डेबिट करते हैं. सो पेनल्टीज, चार्जेस, आप बोलेंगे चार्जेस मतलब बहुत बार क्या होता है, सप्लायर डीमरेज लगाता है. क्या वर्ड यूज किया मैंने? डीमरेज. डीमरेज मतलब आप गुड्स इंपोर्ट किए तो जो शिपिंग कंपनी रहता है वो आपको उसका कंटेनर जो रहता है, बड़ा बड़ा कंटेनर, वो 24 आवर्स तक के लिए फ्री देता है. जनरली स्पीकिंग देयर माइट बी सर्टन पोर्ट्स और एजेंसीज विच मे प्रोवाइड इट फॉर मोर देन 24 आवर्स, बट नॉर्मल थंब रूल क्या है? 24 आवर्स के लिए आप क्या कर सकते हो? कंटेनर रख सकते हो, गुड्स क्लियर करवा के ले सकते हो. किससे? कस्टम अथॉरिटीज से. आपको लग गए 72 आवर्स क्योंकि उसके अंदर कुछ चरस गांजा आपने रखा था या कुछ तो सस्पेक्टेबल मटेरियल था. कस्टम्स अथॉरिटीज ने ज्यादा टाइम ले लिया चेकिंग करने में. शिपिंग कंपनी क्या बोलता है? अब भाई तूने मेरा कंटेनर 2 दिन के लिए यूज किया, 3 दिन के लिए यूज किया, मैंने तेरे को फ्री में दिया था 1 दिन के लिए, जो एक्स्ट्रा 2 डेज के लिए तूने कंटेनर यूज किया उसके मैं चार्जेस तेरे को लगाऊंगा. वो चार्जेस को बोलते हैं डीमरेज. क्या बोलते हैं? डीमरेज. सो ये डीमरेज क्या है? इट्स लाइक अ पेनल्टी इम्पोज बाय हुम? शिपिंग कंपनी फॉर डिले इन अनलोडिंग द गुड्स. मैंने थंब रूल क्या बोला? ऑल abnormal costs आर गोइंग टू बी एक्सक्लूडेड, दे आर नॉट गोइंग टू बिकम पार्ट ऑफ योर कॉस्ट. तो डीमरेज को क्या करोगे बच्चों? इंक्लूड करोगे या एक्सक्लूड करोगे? एक्सक्लूड करना मतलब माइनस नहीं करना, ऊपर ऐड नहीं किया, नहीं तो तुम नीचे लेस डीमरेज, यू आर ओवर. पेनल्टीज एंड चार्जेस, एक्सक्लूजन्स लिखा है मैंने. अदर एक्सपेंसेस नॉट बोर्न बाय अस, ऑब्वियसली इफ यू आर नॉट बेयरिंग एक्सपेंसेस व्हाई विल वी include? So unloading charges, yes, obviously they will be considered as a part of what? Landed cost. Transit insurance मैंने ले लिया, टैक्स ले लिया. क्लियर है आपको? ये सारे आइटम्स जो है उनका हम टोटल निकाल लेंगे. टोटल निकाल के हम क्या करेंगे? लैंडेड कॉस्ट. दैट इज कॉस्ट इंकर्ड टू ब्रिंग इन्वेंट्री टू इट्स करंट लोकेशन एंड कंडीशन. Whatever cost you are incurred to bring inventory to current location and condition, we will consider. समझा गया? वो पूरे कॉस्ट को हम लैंडेड कॉस्ट कहेंगे. बट बहुत बार ऐसा होता है कि ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन देयर इज अ नॉर्मल लॉस, या ड्यूरिंग स्टोरेज यू आर एक्सपेक्टिंग नॉर्मल लॉस. तो क्या करोगे आप? फॉर एग्जाम्पल आई परचेस 1000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 373 पर यूनिट. ये मैंने परचेस किए, ठीक है? तो कुछ भी कर लो, देयर इज गोइंग टू बी सर्टन लॉस विच आई नो. अब ये लॉस जो होता है ना, कभी रियल लाइफ में ऐसा एग्जैक्ट नहीं होता है. लॉस रियल लाइफ में एग्जैक्ट नहीं होता है. मतलब ऐसा 5%, 5.3%, 5.5% ऐसा एग्जैक्ट नहीं होता है. देयर इज गोइंग टू बी जनरली अ रेंज. Some roads are closed for G20 delegates. ऐसा कंडीशन. क्या पुणे में रोड्स क्लोज है? हाँ, तो जहां पर भी क्लोज है आप रास्ते के बाजू में जाओ, यूट्यूब खोलो और देखो. अब क्या कर कह सकते हैं यार? G20 है भाई साहब. मतलब हम इतना प्राउड हो गए, हमारे यहाँ पे लोगों को 80 करोड़ लोगों को खाना नहीं मिल रहा है और वी आर प्राउड. बॉस, इट्स प्राउड मूवमेंट फॉर द नेशन. सो 1000 crores, 1000 units at the rate of 373 per unit you purchased. And मैं बोलता हूं 5 to 7% क्या है? नॉर्मल लॉस है. 5 से 7% नॉर्मल लॉस है. मैं बोलता हूं स्क्रैप हो गया 125 यूनिट्स. स्क्रैप कितना हो गया? 125 यूनिट्स का स्क्रैप हो गया बच्चों. सुन लो, रीसेल वैल्यू और सेल वैल्यू ऑफ अ स्क्रैप. सेल वैल्यू ऑफ स्क्रैप इज ₹31 पर यूनिट. नॉर्मल लॉस का परसेंटेज मैंने कितना बोला? 5 to 7% के बीच में लॉस हुआ तो हम क्या बोलेंगे उसको? नॉर्मल लॉस बोलेंगे. फाइंड लैंडेड कॉस्ट पर यूनिट.
चेक करते हैं. Normal loss is going to be spread over other units. Let me see whether you can do it. कर लो. गलत गए तो भी चलता है, जल्दी लेकिन स्पीड के साथ चाहिए. यूट्यूब पब्लिक चैट बॉक्स टाइप करना. ये अंग्रेजों की कीचड़ है साला. Calculate the cost. 392.63 is the first answer that I got. I don't know correct है क्या wrong है. Landed cost per unit. Get the landed cost per unit. तो G20 डेलीगेट्स को अपने इस एरिया में भी लेके आना, थोड़ा रोड अच्छे हो जाएंगे. 386.2505. So as usual, you people have started showing your true colors and a variety of answers have started. 390, 396.9. So I got 3 answers from 3 different candidates. How many of you are in no answers zone? आंसर ही नहीं आ रहा है सर. अब देखो बच्चों, व्हाट इज योर कॉस्ट पर यूनिट? समझ लो बच्चों, अंडरस्टैंड करो ये फॉर्मूला. मैं लिंक कर रहा हूं प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर से. ये मैंने फाउंडेशन के कंसाइनमेंट में भी सिखाया था. सी, जो भी तुमने कॉस्ट इंकर्ड किए ना, वॉट एवर कॉस्ट यू आर इंकर्ड, कौन से कॉस्ट? प्रोडक्ट कॉस्ट. जो भी पेनल्टीज, एबनॉर्मल कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट रहेंगे, उसको बोलेगा चल हट. कॉस्ट इंकर्ड माइनस you should take scrap value of normal loss. Some items have taken scrap value of 125 into 31. बेशरम कहीं के. अब बोलेगा सर क्या सर, हमको सुबह सुबह गाली देना चालू किए तुम. तो you do not deduct a scrap value of all units. You should deduct a scrap value of only normal loss. Why? Normal loss is a loss which was supposed to take place in a normal course of business. नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कितना लॉस होना चाहिए था? 5 से 7%. एक्चुअल लॉस कितना हुआ है? 12.5%. एक्चुअल लॉस इज मोर, 12.5%. होना कितना चाहिए था? होना कितना चाहिए था? 7%. पासिंग परसेंटेज बैच का आना चाहिए था 70%. आया कितना? 51%. तो मतलब 29% अबनॉर्मल लॉस. वैसे कुछ माइनस नॉर्मल लॉस क्वांटिटी. तो बच्चों हम क्या करते हैं? वी स्प्रेड द कॉस्ट ऑन गुड यूनिट्स. कॉस्ट इंकर्ड, कितना कॉस्ट इंकर किया था? 1000 इंटू 373 हमने खर्च किया था, माइनस नॉर्मल लॉस कितना लेंगे मैं? 70 नॉर्मल लॉस रहेगा. अब बोले सर 70 कहां से? 5 to 7%. तो उसके बीच में कहीं पे भी लॉस होने दो, हम उसको नॉर्मल बोलेंगे. ओके, सीए एग्जाम्स में परफेक्ट परसेंटेज आता है. आई हैव नेवर सीन दिस 5 to 7% थिंग. रियल लाइफ इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी अ रेंज. 70 का स्क्रैप वैल्यू 31 है. ओ, इसका मतलब ये नहीं कि अबनॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू नहीं है. ब्यूटी, नॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल लॉस, बोथ आर फिजिकली द सेम. इट इज जस्ट अकाउंटिंग के लिए हम बोल रहे हैं ए तू नॉर्मल है, तू अबनॉर्मल है. करेक्ट, दैट्स व्हाट इट इज. फिजिकली कुछ अलग नहीं. सी, मैं 2 एंगल्स आपको सिखाए थे ऑन योर स्क्रीन. 2 एंगल्स फॉर नॉर्मल एंड अबनॉर्मल लॉस. 2 एंगल, 2 बच्चे. पहला बच्चा, अ लॉस इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल लॉस इज अ abnormal loss. This is angle 1 which we are using, right? A loss more than the normal loss is a abnormal loss. What is another angle? A loss due to reasons other than nature of product. Normal loss is due to the nature of product. If a loss takes place due to fire, theft, कोई भी प्रोडक्ट का नेचर जनरली फायर, थेफ्ट नहीं रहता है.
पेट्रोकेमिकल्स के केस में हो सकता है फायर, थेफ्ट नहीं होता. थेफ्ट इज नेवर अ नेचुरल रीजन ऑफ एनी प्रोडक्ट. एनी प्रोडक्ट इज नहीं, मैं तो चोरी करने के लिए पैदा हुआ हूं, नहीं. सो लॉस ड्यू टू रीजन अदर देन नेचर ऑफ प्रोडक्ट इज एबनॉर्मल लॉस. राइट नाउ इट वाज व्हाट, ऊपर का जो था 125 माइनस 70 इज एबनॉर्मल लॉस. कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस इज डेबिटेड टू कॉस्टिंग P&L. 1000 माइनस 70, तो हम क्या करेंगे, 3,73,000 माइनस ये कितना आता है 2170 अपॉन 930 इज इक्वल टू 398.74. वाह रे वाह पिंकी बेशरम. सुबह सुबह इधर बेशरम, सुबह सुबह माती खाते हैं. 7 बजे सुबह एक भी आंसर सही नहीं है तीनों में से. $398.74. इस गधे ने क्या किया, स्क्रैप वैल्यू 125 का लिया. हाउ मेनी टुक स्क्रैप वैल्यू ऑफ 125? रेज योर हैंड्स. प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू. You should not take a scrap value of only a total loss. You should take a scrap value of only normal loss. क्यों? प्रोसेस कॉस्टिंग का चैप्टर याद करो. ये मैंने क्वेश्चन जो सेट किया प्रोसेस, मैंने बोला ना ये रिवीजन है. आई विल बी लिंकिंग मल्टीपल चैप्टर्स. प्रोसेस कॉस्टिंग का चैप्टर था, लिंक था ये. तो बच्चों आपने कॉस्ट कितना इंकर किया रे, 3,73,000. इतना तो खर्च हुआ आपका. आंसर रॉन्ग. इसमें से आपको 125 इंटू 31 स्क्रैप में से वापस मिला आपको. बोलो ना. आप बोले सर ऊपर तो आपने लिखा रहा है, 2 मिनट रुक तू ससुरे. बोलो आंसर. 3,69,125. सच में अगर बोलूं तो आपके जेब से इतना गया, आपके जेब में इतना आया, है ना. तो इतना आपका नेट कॉस्ट है कि नहीं. या मैं ठीक से नहीं लिख रहा हूं, तुम समझ लो. नेट कॉस्ट है. अब उसमें से हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. अज्यूम करो अभी तक कुछ भी यूज नहीं हुआ. इन्वेंट्री में कितना रह सकता है, 930 नहीं. इन्वेंट्री में रहेगा आपका, फिजिकली मुझे बोलो आपके पास कितना रहेगा. 875 के ऊपर आपके पास रह ही नहीं सकता. आप बोलेंगे कैसे नहीं रह सकता सर, लॉस है ना. तो इन्वेंट्री में अगर 875 रहा तो उसकी हम इफेक्टिव कॉस्ट निकालेंगे 398.74. वो डिजिट्स के हिसाब से थोड़ा सा फर्क आएगा आंसर में. 348 897. ठीक है. अबनॉर्मल लॉस का कॉस्ट कितना होगा. अबनॉर्मल लॉस 125 नहीं है गधे. अबनॉर्मल लॉस इज 125 था ना टोटल लॉस, उसमें से 70 आपका नॉर्मल लॉस गया. एबनॉर्मल लॉस इज ऑल्सो वैल्यूड एट कॉस्ट पर गुड यूनिट. बोलो. 21,930. टोटल लो दोनों का, मैच नहीं होना चाहिए. हाँ मैच नहीं होना चाहिए, मालूम है मुझे, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू माइनस करना है ना मुझे उसमें से. 2 मिनट रुक ना. इट शुड नॉट मैच. ऑब्वियसली मैच होगा क्या, नहीं. क्यों, ये एबनॉर्मल लॉस को ग्रॉस रेट पे वैल्यू किया मैंने. इसमें से एबनॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू भी आएगी. एबनॉर्मल लॉस कितना तुम्हारा 125 माइनस 70 कितना था 55 इंटू 398.74. सॉरी 398 नहीं था, 55 का कितना आया था 31. डिफरेंस कितना था, राउंडिंग ऑफ डिफरेंस छोड़ दो यार, माइनस करके बोलो. 21,930 माइनस 55 इंटू 31 20,225. अब मुझे बोलो इन दोनों का टोटल. 348,897 plus 20,225. Rounding of difference will be there. Do not worry about it. 369,122. अभी वो 3 रुपए का डिफरेंस जो है वो राउंडिंग ऑफ डिफरेंस है, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता. वो है. What I want to tell you is whatever cost you
इंकर, इट इज गोइंग टू बी स्प्रेड लाइक दिस. उसमें से आपको स्क्रैप मिला ना, बट हम इन्वेंट्री का कॉस्ट 348 पकड़ेंगे और 20,000 विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज व्हाट? अबनॉर्मल लॉस. चलो, आपको ये प्रेजेंटेशन अगर पसंद नहीं आया तो मैं क्या कर सकता हूं, देखो टी फॉर्म में आपको प्रेजेंट करके दिखाता हूं. अगर आप पी एंड एल बोलो, कॉस्टिंग पी एंड एल बोलो, कुछ भी बोलो. आपने पहले मटेरियल परचेस किया कि नहीं बच्चों? तो आप परचेस में कितना लिखोगे? 1000 इंटू 373, 3,73,000 का परचेस हुआ. आप इधर स्क्रैप लिख दो, पूरा का पूरा लिख दो स्क्रैप. कितना स्क्रैप आया रे आपका? स्क्रैप कितना आया था? नहीं ना, क्वांटिटी 125 इंटू 31. ये सच में आया पैसा? बोलो. 3875. हाँ है ना. अबनॉर्मल लॉस आपको अलग मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में आप अलग से रिकॉर्ड करते हो और उसको पीएनएल को ट्रांसफर करते हो. अभी मैं एक ही बना रहा हूं, ट्रेडिंग पीएनएल अलग अलग बना रहा हूं क्या? इसमें सिर्फ मैं लिखूंगा क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक में आपके पास 1000 में से 125 तो चले गए, रहेंगे कितने? 875 विल बी वैल्यूड एट, किधर गया? 398.74. बोलो. 348,897. ये आपका क्लोजिंग स्टॉक रहेगा. बच्चों, अबनॉर्मल लॉस ऑटोमेटिकली डेबिट हो गया. अब बोले किधर डेबिट हो गया अबनॉर्मल लॉस? देखो ना तुम, ये डेबिट माइनस दिस क्रेडिट, ये स्टॉक में है आपका, ये क्लोजिंग स्टॉक में अभी है. वो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे इश्यू हो जाएगा. इश्यू होके हर एक जॉब को 398 के हिसाब से मटेरियल का कॉस्ट चार्ज हो जाएगा. देखो ना डिफरेंस, देखो इसका, इसका डिफरेंस एग्जैक्ट 20,225 रहना चाहिए. तो वो एबनॉर्मल लॉस है. आप बोले सर दिख नहीं रहा है लेकिन एंट्री में, वो इसलिए दिख नहीं रहा है क्योंकि मैंने सिर्फ पी एंड एल बनाया. तुम अगर परचेस ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाओगे तो फिर वहां से बाय अबनॉर्मल लॉस नीचे लेके आओ. इट्स ओके, समझा गया? व्हाट आई वांट टू टेल यू, effective cost is calculated like this. Process costing chapter. Effective cost is cost incurred minus scrap value of only normal loss. Majority of you made a mistake. You took a scrap value of all units. Why we take a scrap value of normal loss? Because in a normal course, my loss was expected to be only 170. अभी इस बार 125 हुआ, हर बार 125 होगा ऐसा नहीं ना. Abnormal loss is not a recurring event. Abnormal loss is a non-recurring thing. If abnormal loss starts taking place every day, every month, every quarter, then why are you calling it as a abnormal loss? It should become, that means your definition of normal loss itself is wrong. In a business, if I'm doing a business, I must know what is unavoidable loss. Normal loss को हम क्या बोलते हैं? Unavoidable. 5 से 7% होने ही वाला है, उसको भगवान भी नहीं रोक सकता, उसको नॉर्मल लॉस बोलते हैं. समझा आपको? ये कॉस्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है. नॉर्मल लॉस की कॉस्ट हम स्प्रेड कर रहे हैं. देखो, अगर नॉर्मल लॉस नहीं होता तो आपकी कॉस्ट कितनी होती थी? आपने परचेस कितने पे किया था? 373 पे परचेस किया था कि नहीं? देखो मैंने क्या किया, ये 398 का तुमको प्रूफ दिखाता हूं मैं तुमको. 398.74 है ना? यू वांना गो मैड? Do you wanna go mad? फिजिकली बोलो कितना नॉर्मल लॉस हुआ तुम्हारा? नॉर्मल लॉस कितना हुआ? टोटल लॉस इज 125. उसके कितने बच्चे पैदा किए? 2. नॉर्मल लॉस बच्चा, एबनॉर्मल लॉस बच्चा. करना क्या होता है? नॉर्मल लॉस की जो कॉस्ट है वो हमें स्प्रेड करनी होती है. किसके ऊपर स्प्रेड करनी होती है? बाकी के आइटम के ऊपर. तुम्हारे 10 दोस्त है, उसमें से एक दोस्त ऐसा है जो कभी भी तुम्हारे पार्टी का बिल देता नहीं है. नॉर्मल लॉस अनअवॉइडेबल है. तो आप क्या करोगे? उसने जो खाना खाया वो आप बाकी 9 लोगों पे स्प्रेड करोगे. या चाय लेने जाते होगे तुम ब्रेक में, वो बराबर चाय पी के गायब हो जाता है. आपको समझ में आता होगा, आज उसको बजाओ. तो नॉर्मल लॉस बोलो. लिसन टू दिस. यू वांना गो मैड? ये 70 यूनिट्स है.
70 कितने भाव पे खरीदा था तुमने? 373 के भाव पे खरीदा था, लेकिन ये 70 को बेचा भी ना मैंने। 70 इंटू 31, यू कैन टेक 70 कॉमन, है ना? कितना है रे? whatever, ओके, इसको मुझे स्प्रेड करना है बाकी 930 पे। अब बोले सर बाकी तो 875 रहा ना सर, 100। अरे गधे, abnormal loss was expected to be good unit but turned out to be bad unit। तो abnormal loss, नॉर्मल लॉस की जो कॉस्ट है वो abnormal loss के ऊपर भी स्प्रेड की जाती है। तो ये डिफरेंस जो है ना 25.74 रहना चाहिए। दिस आंसर शुड बी 25 पॉइंट। अरे बच्चा टैली हुआ कैसे? 373 इज अ कॉस्ट ऑफ एवरी परचेस आइटम प्लस नॉर्मल लॉस की जो कॉस्ट थी वो मैंने बाकी गुड यूनिट्स पे स्प्रेड की। तुम गुड यूनिट्स में abnormal loss इज ऑल्सो गुड यूनिट। इतने सारे पॉइंटर्स बोले साले, कभी ने लिखे नहीं। लिखो abnormal loss was expected to be good unit but turned out to be bad unit। मतलब बच्चा बोलता है ना सर आई वाज एक्सपेक्टिंग एग्जम्पशन बट सर टीसी मार्क दिए इंस्टीट्यूट ने। तो वैसा यू आर एक्सपेक्टिंग टू पास बट इंस्टीट्यूट मेड यू क्राई। सुबह सुबह तुमको परेशान करूंगा ना, मतलब ऑब्वियसली। ये क्या आ रहा है बीच में? फैन है क्या वो? सो 25.74, हैव यू गॉट इट? तो हमने स्प्रेड किया। नॉर्मल लॉस abnormal लॉस क्लियर है क्या सबको? तो देखो 25.74 हमने स्प्रेड कर लिया, यही कॉन्सेप्ट है। अब नॉर्मल लॉस abnormal लॉस के इतने अलग अलग नाम देते हैं ना इंस्टीट्यूट, कभी उसको वेस्ट बोलते हैं, कभी स्क्रैप बोलते हैं, कभी स्पॉइलेज बोलते हैं, कभी डिफेक्टिव बोलते हैं, कभी ऑब्सोलेसेंस बोलते हैं। कुछ भी बोलो, ट्रीटमेंट सेम ही है। ट्रीटमेंट इज सेम। तो वही तो मैंने अभी ट्रीटमेंट लिखा। तो क्या ट्रीटमेंट है बच्चों? लॉस ऑफ मटेरियल। कितने बच्चे पैदा किए लॉस ऑफ मटेरियल के? 2। कौन से? नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। 2 बच्चे पैदा हुए। नॉर्मल लॉस को हम क्या बोले? अनअवॉइडेबल है। क्यों अनअवॉइडेबल है? नेचर ऑफ गुड्स की वजह से हो रहा है वो। एबनॉर्मल लॉस इज अवॉइडेबल। अब बोले सर कैसे अवॉइड करें इसको? बाय टेकिंग इंश्योरेंस। इंश्योरेंस मिल सकता है आपको उसका। बच्चों एबनॉर्मल लॉस के 2 एंगल्स थे। लॉस इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल लॉस, और दूसरा एंगल क्या था? लॉस ड्यू टू रीजंस अदर देन नेचर ऑफ गुड्स और प्रोडक्ट और व्हाटएवर यू वांट टू से। ये मैंने 1000 बार एक्सप्लेन किया है। नॉर्मल लॉस, इसको क्या करेंगे बोलो? स्प्रेड ओवर अदर यूनिट्स इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस। याद है क्या रे? सो व्हाट इज योर इफेक्टिव कॉस्ट? इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू कॉस्ट इंकर्ड, वट एवर कॉस्ट यू इंकर, मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड अगर फिनिश गुड्स के केस में, तो माइनस, डू यू टेक एंटायर स्क्रैप वैल्यू बच्चों? नो, यू टेक ओनली स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय इनपुट क्वांटिटी या परचेस क्वांटिटी माइनस विच क्वांटिटी? नॉर्मल लॉस क्वांटिटी। ये कैसे टैली होता है वो भी मैंने एक्सप्लेन करके दिखाया। 373 से हम कहां पे गए थे? 398 पे, क्योंकि वो जो 70 यूनिट्स थे उनकी कॉस्ट हमने स्प्रेड की बाकी यूनिट्स पे। उसको आप इमेजिन करो, आपका एक वो कमीना दोस्त जो खाने का पैसा देता नहीं है, उसका चार्जेस आप बाकी लोगों के ऊपर स्प्रेड करते हो। सिर्फ उस केस में स्क्रैप वैल्यू का कंसेप्ट नहीं होता है, इधर स्क्रैप वैल्यू का कॉन्सेप्ट है बस। तो दैट वाज कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 4, एक बार आपने लैंडेड कॉस्ट समझ लिया, नॉर्मल लॉस अबनॉर्मल लॉस समझ लिया, तो स्टोर्स लेजर समझना इंपॉर्टेंट है। स्टोर्स लेजर के ऊपर क्वेश्चन आता है एग्जाम में। क्या करते हैं स्टोर्स लेजर में? स्टोर्स लेजर यू मेंटेन डिटेल्स ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स इनवर्ड एंड आउटवर्ड एज वेल एज यू मेंटेन द रेट। अब वो स्टोर्स लेजर बनाने के लिए आपको मेथड चूज करना होता है, आइदर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या वेटेड एवरेज कॉस्ट।
these are only two methods which are allowed, but in exams you can have a LIFO ka question also. First in first out, I assume everyone knows. Goods purchased first are assumed to be issued first. मटेरियल है ना, तो ये मेरा स्टोर से परचेस फर्स्ट इज इश्यूड फर्स्ट. वेटेड एवरेज कॉस्ट में ऐसा कोई अजम्पशन नहीं है. ऑल गुड्स गेट मिक्स्ड. अंडर फीफो यू हैव टू मेंटेन लाइन बाय लाइन, मतलब आइटम बाय आइटम डिटेल्स. अंडर फीफो मेथड एवरी परचेस इज गोइंग टू बी रिटन सेपरेटली इन स्टोर्स लेजर. अंडर वेटेड एवरेज ऑल गुड्स कैन बी मिक्स्ड विथ ईच अदर. तो फीफो लिफो मालूम है सबको, वो एक्सप्लेन करने की जरूरत है. डायरेक्ट स्पेशल पॉइंट्स पे जा सकता हूं. क्वेश्चन में आपको पढ़ना है परपेचुअल मेथड या पीरियोडिक मेथड. परपेचुअल मतलब आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन यू आर मेकिंग अ रिकॉर्ड. पीरियोडिकल मतलब डायरेक्टली एट द एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द क्वार्टर यू आर डूइंग अ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री. सो परपेचुअल इज एवरी ट्रांजैक्शन record every transaction. Periodic मतलब at the end of the period, मतलब it is not after every transaction, directly at the end of the period you do the valuation of inventory. Which one are you going to follow if nothing is given in the question? Perpetual. बाय डिफॉल्ट अजम्पशन एग्जाम में आपको करना है परपेचुअल का. तो दिस इज डिफॉल्ट अजम्पशन. याद आ रहा है स्टोर्स लेजर? अब स्टोर्स लेजर में कुछ स्पेशल आइटम्स होते हैं. रिटर्न, पहले दो अलग अलग टाइप के रिटर्न होते हैं, वो समझ लो. एक है रिटर्न फ्रॉम स्टोर्स टू सप्लायर और दूसरा होता है रिटर्न फ्रॉम शॉप फ्लोर टू स्टोर्स. इसमें कंफ्यूज मत होना. रिटर्न टू सप्लायर, सप्लायर मतलब स्टोर्स में माल था, वो डिफेक्टिव निकला या एक्सेस निकला या वॉट एवर द रीजन, वी आर गिविंग इट बैक टू हुम? सप्लायर. दैट इज वन. दूसरा क्या है, स्टोर्स में माल था, वो हमने पर्टिकुलर जॉब के लिए इश्यू किया था, उनको वहां पर उसकी जरूरत नहीं है, वो वापस शॉप फ्लोर से स्टोर्स आ रहा है. तो ये क्या है, रिटर्न टू स्टोर्स इज, दिस इज शॉप फ्लोर टू स्टोर्स. ये क्या है हमारे लिए, इश्यू है या रिसीट है? दिस इज रिसीट. दिस इज रिसीट इन व्हाट? स्टोर्स लेजर. समझ रहा ना? हम डायरेक्टली एडवांस पॉइंट, सी स्टोर्स लेजर का फॉर्मेट ड्रॉ करके वगैरह टाइम वेस्ट हो जाता है. यू शुड नो ओनली, आई होप एवरीवन नोज स्टोर्स लेजर. डेट, रिसीट, क्वांटिटी, रेट, रुपीज, इश्यूज, क्वांटिटी, रेट, रुपीज, बैलेंस, क्वांटिटी, रेट, रुपीज. फाउंडेशन में भी किया है, इंटर में भी किया है. सो जस्ट एडवांस इश्यूज पे आ जाओ ना. दिस इज रिसीट इन स्टोर्स लेजर. ये क्या है, रिटर्न टू सप्लायर. दिस इज इश्यू इन स्टोर्स लेजर. डिड यू नोटिस डिफरेंस? दिस विल बी एंटर्ड एज अ इश्यू, दिस विल बी एंटर्ड एज अ रिसीट. अब सवाल यह आता है क्या रेट पे एंटर करें? दिस विल बी एंटर्ड एट सेम रेट एट विच रिसीट वॉज एंटर्ड. कुछ समझा क्या? सप्लायर को हम अगर वापस दे रहे हैं ना, तो जो रेट पे हमने रिसीट एंट्री की थी उसी रेट पे हम इश्यू एंटर करेंगे और सप्लायर को मटेरियल वापस दे देंगे और सप्लायर से उतना पैसा रिकवर करेंगे. ऑब्वियसली अगर सप्लायर ने नहीं दिया पूरा पैसा फॉर वॉट एवर रीजन, दैट डिफरेंस इन अबनॉर्मल लॉस. लाइक सप्लायर से जब हमने परचेस किया था तो हमारी लैंडेड कॉस्ट थी 50 रुपीज पर यूनिट. सप्लायर को तुमने वापस कर दिया. सप्लायर बोलता मैं इसमें से 40 रुपया तुमको दूंगा. स्टोर्स लेजर में हम 50 ही एंटर करेंगे. स्टोर, अभी मैं स्टोर्स लेजर सिखा रहा हूं. स्टोर्स लेजर में 50 ही एंटर होगा, लेकिन 10 रुपया जो है सप्लायर जो नहीं दे रहा है वो हम अबनॉर्मल लॉस करके करेंगे. जब रिटर्न होगा तो सप्लायर को हम डेबिट नोट ठोकेंगे. सप्लायर को क्या करेंगे, डेबिट नोट 50 का भेजेंगे उसको. उसके अगेंस्ट उसने कितना दिया अपने को? 40 दिया. बोलेगा क्यों दिया? अरे कॉन्ट्रैक्ट में कुछ रीजन हो सकता है.
whatever supplier might say कि अगर आपने रिटर्न किया तो मैं पूरा रिटर्न रिफंड नहीं दूंगा, रिफंड विल बी पार्शियल रिफंड ओनली. क्यों? नेक्स्ट, मैंने इशू किया था शॉप फ्लोर पे. इशू किसके लिए किया था? प्रोडक्शन करने के लिए कुछ इशू किया था, उसमें से कुछ मटेरियल उन्होंने वापस कर दिया. सो रिटर्न टू स्टोर, दिस इज एंटर्ड एज अ रिसीट. एट व्हाट रेट? एट सेम रेट एट विच, बोलो, इशू वॉज एंटर्ड. इशू जो रेट पे एंटर हुआ था ना, उसी रेट पे हम क्या करेंगे? रिसीट एंटर करेंगे, क्योंकि वो मटेरियल आ गया. तो वो क्या करेंगे? जिस जॉब के लिए हमने इशू किया था उस जॉब की कॉस्ट कम करेंगे. उस जॉब की कॉस्ट कम करेंगे, क्योंकि अब उस जॉब से मटेरियल वापस आ गया. ट्रांसफर फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब. हमने मटेरियल इशू किया था जॉब नंबर 1567, वहां से ट्रांसफर हुआ जॉब नंबर 2319. तो क्या करेंगे? स्टोर्स लेजर में नो एंट्री, नो एंट्री इन स्टोर्स लेजर. क्यों? स्टोर्स में मटेरियल आया नहीं. मटेरियल कहां पे गया? दूसरे जॉब पे गया. तो क्या होगा? एंट्री विल बी इन अ डब्ल्यूआईपी लेजर. डब्ल्यूआईपी का हर एक जॉब का अलग अलग लेजर अकाउंट होता है. तो हम क्या करेंगे? डेबिट द जॉब विच रिसीव्ड द मटेरियल एंड क्रेडिट द जॉब विच सेंट द मटेरियल और ट्रांसफर्ड द मटेरियल. तो एंट्री इन रिस्पेक्टिव जॉब अकाउंट. आई होप यू अंडरस्टूड. हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, स्टोर्स लेजर बनाते टाइम पे कभी कभी ससुरा बोलता है शॉर्टेज हो गया. कभी कभी ससुरा क्या बोलता है? शॉर्टेज हो गया. अभी वो शॉर्टेज क्या हो सकता है? कैन बी ईदर नॉर्मल लॉस और कैन बी अ एबनॉर्मल लॉस. कैन बी नॉर्मल लॉस, कैन बी एबनॉर्मल लॉस. अगर नॉर्मल लॉस है तो आप क्या करोगे? इंफ्लेट द रेट. क्या बोलता हूं मैं? इंफ्लेट रेट. एबनॉर्मल लॉस है तो क्या करेंगे हम? ट्रीट इट एज इशू. ये एग्जांपल देके एक्सप्लेन करता हूं. ट्रीट इट एज इशू एट ऑनगोइंग रेट. क्या बोला मैंने? एट ऑनगोइंग रेट. लेट मी एक्सप्लेन व्हाट डू आई मीन बाय ऑनगोइंग रेट, क्योंकि आपकी याददाश्त उतनी नहीं होगी. देखो, ये आपको क्या दिख रहा है? रिसीट, इशू, बैलेंस. ये क्या है रे आपका? स्टोर्स लेजर. विजुअलाइज कर पा रहे हो? ऑनलाइन पब्लिक, आई होप यू आर एबल टू विजुअलाइज. 25 जून आपका बैलेंस था 600 यूनिट्स क्वांटिटी है एट द रेट ऑफ 18. बोलो, 10,800 का वैल्यू है. एक ही लाइन है. मैं पहले इजी क्वेश्चन ले रहा हूं, उसके फिर बाद में बचाता हूं. पहले इजी लेता हूं. तो तुम्हारे पास माल कितना था? 600 यूनिट थे 18 के भाव पे. 30 जून को तुमने स्टॉक टेक किया और निकले 540 यूनिट. तुम्हारे स्टोर्स के हिसाब से होने, लेजर के हिसाब से होने चाहिए 600, और हो कितने गए? 540. 60 यूनिट गायब. अब वो 60 यूनिट आप नॉर्मल ट्रीट करोगे या अबनॉर्मल ट्रीट करोगे, ये क्वेश्चन में देना चाहिए. डिपेंडिंग ऑन व्हाट क्वेश्चन गिव्स, आंसर विल चेंज. लेट्स से क्वेश्चन सेज इट इज नॉर्मल लॉस. इट इज. तो फिर क्या करना है? इशू में 60 एंटर करना है आपको, लेकिन अमाउंट, रेट कुछ भी एंटर नहीं करना है. इफ इट इज अ नॉर्मल लॉस, इट इज गोइंग टू बी स्प्रेड ओवर अदर यूनिट्स. जस्ट शो 60 क्वांटिटी गॉन फ्रॉम व्हाट? 60 क्वांटिटी गॉन फ्रॉम स्टोर्स. बैलेंस कितना दिखाओगे? 540. 540 is a balance that you are going to show. Cost will remain same as what? 10,800. but per unit cost क्या होगी आपकी? बढ़ गई. कितनी हो गई per unit cost? 20. Why per unit cost went up? Normal loss is gonna be spread over other units. This is a solution if you take it as. अब मैं यहां पर ब्लू कलर में अलग सोल्यूशन दिखा रहा हूं. इफ दैट वाज शोन एज अ abnormal loss, ignore that second line. I will write 60 here. I will write 18 here. I will treat it as issue at what? Ongoing rate. इधर मैंने क्या लिखा था? Inflate rate. तो कितना है रे? 1080. हम स्टॉक तो 540 ही दिखाएंगे, लेकिन अबे जस्ट अ सेकेंड, इधर गया.
हाँ, 540 एट द रेट ऑफ 189720. डिड यू अंडरस्टैंड? ये बहुत आसान क्वेश्चन था. क्यों? इट वॉज ओनली वन लाइन आइटम विच वॉज देयर अंडर वेटेड एवरेज मेथड. वेटेड एवरेज में रिमेंबर योर बैलेंस इज ऑलवेज गोइंग टू बी वन लाइन आइटम. फीफो के अंदर हम बोलेंगे 600 में से 400 इज एट सो एंड सो रेट, 200 इज एट सो एंड सो रेट. दिक्कत आती है फीफो में. ये समझा तुमको? ये समझा ना पक्का? अब मैं क्या कर रहा हूं, एक लाइन ड्रॉ करके फीफो एक्सप्लेन कर रहा हूं. 25 जून को सिचुएशन ऐसा था. अब ये मुश्किल है, एग्जाम में आ गया तो मतलब दुआ करना तुम्हारा आंसर आई से एक आंसर मैच हो जाए. 400 इज एट द रेट ऑफ 23 फॉर एग्जाम्पल. बोलो 9200 एंड 300. मैं अलग एग्जाम्पल ले रहा हूं. 300 इज एट द रेट ऑफ 21, 6300. 25 जून को. 30 जून को तुम गए और तुमको समझ में आया, 30 जून को तुम गए और तुमको समझ में आया कि 700 के जगह पे 685 है. ये कितना है? 700 था ना तुम्हारा. होना कितना चाहिए था? 700 है कितना? 650. 50 गायब है. अब वो 50 को नॉर्मल ट्रीट करना है या एबनॉर्मल, वो तो मैनेजमेंट का कॉल होता है. तो उन्होंने ट्रीट किया नॉर्मल. अब दिक्कत क्या है? एज पर फीफो गुड्स परचेस फर्स्ट आर इशूड फर्स्ट. तो जो फर्स्ट लाइन है वो पहले परचेस किया रहता है, सेकंड लाइन बाद में परचेस किया रहता है. तो अभी आपको 50 तो गायब करने का है. 50 नॉर्मल लॉस है तो डैश डैश आएगा. नॉर्मल लॉस है तो 50 तो गायब कर दे. दिक्कत यहां पर आती है. 350 यहां पे लिखेंगे हम, 9200 इधर रखा और ये 300 चला ऐसा. ये आई डो नॉट अग्री विद दिस आंसर. दिस हैज नॉट कम अप इन एग्जाम. 9200 अपन 350 26 पॉइंट. आई डोंट अग्री विद दिस आंसर पर्सनली बट आई हैव नो चॉइस. क्या करूं? हम क्या कर रहे हैं मालूम है? वी आर एडजस्टिंग नॉर्मल लॉस ओनली ऑन द फर्स्ट लॉट एंड नॉट ऑन सेकंड लॉट. फीफो में ये प्रॉब्लम है. फीफो में अगर आपको लॉजिकली क्या होना चाहिए, मैं आपको बोलूं लॉजिकली आंसर क्या होना चाहिए. यू शुड स्प्रेड इट ओवर बोथ. That 50 you should spread in the ratio of 4:3. ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं ना आईसीए के मॉड्यूल में. इन्होंने एक दो बार एग्जाम में आया है शॉर्टेज का क्वेश्चन, लेकिन दोनों, एक में फीफो था लेकिन उसमें 2 लाइन नहीं थे, एक ही लाइन था. एबनॉर्मल लॉस में प्रॉब्लम नहीं आता. ये एबनॉर्मल लॉस में क्योंकि रेट इंफ्लेट नहीं करना है, तो आप आइदर ऐसा आंसर दे सकते हो या ये 50 को आप 4:3 के प्रोपोर्शन में माइनस करने का, अमाउंट उधर उतना ही रखने का, और ये क्वांटिटी क्या आएगा. दूसरा आंसर बोलो क्या है? 4:3 में स्प्लिट करो 50 को. 28.57. तो 400 में से 28.57 माइनस कर 371.43. और दूसरा कितना आएगा? 300. वो 300 में से बाकी का माइनस करना 278.57. समझा क्या? मैंने क्या किया? 50 का क्वांटिटी 4:3 के रेशियो में स्प्रेड किया और उतना माइनस किया. बिकॉज फिजिकली लॉस किसमें से हुआ, किसके बाप को मालूम है यार? फीफो वेटेड एवरेज कब यूज होता है? व्हेन गुड्स गेट मिक्स्ड विथ ईच अदर. और दोनों का रेट में क्या करूंगा? इंफ्लेट करूंगा. रेट विल बैलेंसिंग फिगर माइनस नहीं डिवाइड करके. समझा क्या? एग्जाम में अगर आ ही गया शॉर्टेज और फीफो रहा और 2 लाइन रहे तो ये प्रॉब्लम है. अब इसके लिए एग्जामिनर के पास क्रिएटिविटी होना चाहिए और आंसर लिखने के वाले के पास ब्रेन होना चाहिए. अब आप बोलेंगे सर हम एग्जाम में कौन सा फॉलो करें? पहले वाला बहुत इजी था. पहले वाला क्या था? ओके, जिन गधों को ये समझा नहीं. 400 माइनस 28 एंड 300 माइनस 22. ऐसा करो आप. मेरा गलती हुआ, ये फ्रैक्शन छोड़ दो. ये 50 को मैंने क्या किया? स्प्लिट किया 372. अरे ये आएगा 278 और रेट उसके हिसाब से निकालो. एग्जाम में प्रेफरेबली यही आंसर लिखना आ गया तो विद अजम्पशन, अज्यूमिंग दैट आवर एग्जामिनेशन सिस्टम हैज अ ब्रेन. अब एबनॉर्मल लॉस हुआ तो फिर आसान है, फिर टेंशन नहीं. एबनॉर्मल लॉस हुआ ना तो 50 23 कितना आया रे?
1150। एबनॉर्मल लॉस हो तो ऑनगोइंग रेट पे चला जाएगा वो। एबनॉर्मल लॉस इज डेबिटेड टू पी एंड एल, कॉस्टिंग पी एंड एल। 350 और ये 300 का 300 वैसा का वैसा रहेगा। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। 350 का 23 पे रहेगा वो 80। सो एबनॉर्मल लॉस की वजह से रेट इंफ्लेट नहीं होता, नॉर्मल लॉस की वजह से रेट इंफ्लेट होता। आई होप यू आर क्लियर। तो 4 अलग अलग कॉन्सेप्ट हमने लर्न किए। अगला कॉन्सेप्ट 5 6 7 3 कॉन्सेप्ट है, 8वां थियरी पॉइंट से जस्ट पॉइंटर्स लिख के दिए मैंने। इन्वेंट्री के लेवल्स हमें डिसाइड करने होते हैं, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, अलग अलग लेवल्स आते हैं। उसके लिए 3 फैक्टर्स रिलेवेंट है। यूसेज रेट, यूसेज रेट को हम क्या बोलते हैं? कंजम्पशन रेट, द रेट एट विच यू कंज्यूम द गुड्स, कंजम्पशन रेट। इसके हम 3 बच्चे पैदा करते हैं, मिन, मैक्स, एवरेज। तो यूसेज रेट आपको 3 तरीके से एक्सप्रेस किया रहेगा। मिनिमम यूसेज रेट पर डे, पर वीक, पर मंथ, व्हाटएवर। मैक्स यूसेज रेट सबसे इंपॉर्टेंट। एवरेज यूसेज रेट इज नॉट मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया रहेगा तो मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2 लेंगे। लेकिन कैन एवरेज रेट बी totally different than minimum plus maximum divided by 2? Yes. आप बोलेंगे हाउ सर? अरे गधे, एवरेज इज नॉट ओनली द सिंपल एवरेज, देयर कैन बी वेटेड एवरेज। मिनिमम यूसेज रेट, हाउ मच डू यू यूज पर डे? प्लीज रिमेंबर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर एग्जामिनर को बचाने ना तुम्हारी, यूसेज रेट ही गिव्स इन डेज, लीड टाइम ही गिव्स इन वीक्स। अच्छा, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करता है, गए मर गए तुम उधर ही, 0 मार्क्स, परफेक्ट। लीड टाइम एंड यूसेज रेट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन सेम मैनर। लीड टाइम इज अ टाइम रिक्वायर्ड टू रिसीव द मटेरियल फ्रॉम द डेट यू प्लेस अ परचेस ऑर्डर। इट इज ऑल्सो नोन एज अ रीऑर्डर पीरियड। तो यूसेज रेट क्या है बच्चों? हाउ मच मटेरियल डू यू यूज पर डे, एंड लीड टाइम इज व्हाट टाइम रिक्वायर्ड टू गेट द मटेरियल। इसको भी हम क्या करेंगे? मिन, मैक्स एंड व्हाट, एवरेज, ऐसे 3 में एक्सप्रेस करेंगे। एवरेज दिया रहेगा तो जो दिया है वो ले लो, नहीं दिया तो मिन प्लस मैक्स अपॉन 2 करना। बट रिमेंबर टू चेक यूसेज रेट एंड लीड टाइम आर एक्सप्रेस्ड इन सेम यूनिट। डेज है तो डेज, हाँ तो आप डेज को वीक्स में कन्वर्ट करो या वीक्स को डेज में कन्वर्ट करो, वो आंसर कैसे भी करो। ओ, दोनों का कन्वर्ट मत करना, डेज को वीक्स में कन्वर्ट किया, वीक्स को डेज में कन्वर्ट किया। तुम्हारा पापा बॉम्बे में, तुम पुणे में, तुमको पापा को मिलने गए, तुम बॉम्बे जाता है, पापा तुमको मिलने गए, पुणे में आता है। सो एनुअल यूसेज, हाउ मच रॉ मटेरियल यू आर गोइंग टू यूज ऑन एनुअल बेसिस, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ईओक्यू कैलकुलेशंस। तो अभी हम अलग अलग इन्वेंट्री लेवल देखेंगे। पहला लेवल, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल, रीऑर्डर लेवल। इट टेल्स यू व्हेन शुड यू प्लेस अ ऑर्डर फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल। बाय द वे, these levels are item by item। तुम्हारे पास 500 अलग अलग रॉ मटेरियल है, हर एक आइटम का अलग रीऑर्डर लेवल होगा। तो रीऑर्डर लेवल इज व्हेन शुड यू प्लेस ऑर्डर। आंसर इज वेरी सिंपल, यू शुड प्लेस अ ऑर्डर व्हेन यू हैव enough stock to cover maximum possible consumption during lead time. I repeat the word. When should you place an order? You should place an order when you have maximum stock with you to take care of consumption during lead time. But plus आप safety stock भी रख सकते हो। तो ये क्या है? Max consumption rate into max lead time, reorder period, plus safety stock। plus safety stock क्यों किया रे मैंने? उसके एडिशन में हमें कुछ बफर स्टॉक रखना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेफ्टी स्टॉक और बफर स्टॉक। सी, मैक्सिमम लीड टाइम एंड मैक्सिमम यूसेज रेट, रिमेंबर देयर इज अ प्रॉब्लम इन द वर्ड मैक्सिमम। दिस इज नॉट, मैक्सिमम का मतलब ये नहीं है इससे ज्यादा कभी हो ही नहीं सकता। ये मैक्सिमम लीड टाइम और मैक्सिमम यूसेज रेट जो है ना, वो तुम्हारे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, ऑर्डिनरी कोर्स में मैक्सिमम 7 दिन लगते हैं सप्लायर को मटेरियल भेजने में, मैक्स। व्हाट इफ देयर इज अ फ्लड,
What if there is a strike at supplier's location? What if there is a terror attack? What if there is a lockdown? What if the traffic jam nature? But so can there be some abnormal event due to which supplier is not able to supply within 7 days? Yes. For that abnormal event, you keep something called as what? Safety stock. I'm expecting a question on safety stock for May 23. मैंने नीचे safety stock दिया है. Safety stock का calculation कैसे करते हैं? I hope we have done the questions on safety stock calculation. Safety stock calculate किया जाता है. चलो ये रीऑर्डर लेवल का क्वेश्चन आ गया तो उसमें सेफ्टी स्टॉक दिया रहेगा. अगर दिया रहेगा तो क्या करोगे आप? ऐड करोगे. ये दूसरा फॉर्मूला देखना मत, वो नीचे से आएगा ऑटोमेटिकली. तो रीऑर्डर लेवल का क्या मतलब था? व्हेन शुड यू प्लेस अ ऑर्डर? ऑर्डर शुड बी प्लेस व्हेन यू हैव मैक्स पॉसिबल कंजम्पशन. मैक्सिमम पॉसिबल कंजम्पशन कितना हो सकता है? याद करो, मैंने आपको स्पीडोमीटर फ्यूल मीटर का एग्जांपल दिया था. आपके गाड़ी में रिजर्व कब लगता है? पेट्रोल पूरा खत्म होने के बाद या पहले लगता है? पहले लगता है. क्यों पहले लगता है? सो दैट यू हैव टाइम टू रीफ्यूल इट. रीऑर्डर लेवल हो गया, उसके बाद हम सप्लायर से फॉलो अप लेना शुरू करते हैं. इमेजिन लाइन है ऐसा, ऐसा लाइन करते थे हम. इधर तुमने ऑर्डर प्लेस किया, सप्लायर से फॉलो अप कब करोगे? मटेरियल थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है. अभी भी मटेरियल नहीं आया सप्लायर से. सप्लायर का फोन करेंगे, भाई साहब क्या हुआ? तो वो फॉलो अप लेवल जो है उसको टेक्निकली बोलते हैं मिनिमम लेवल. मिनिमम लेवल इज रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन, एवरेज यूसेज रेट पर डे. सो 10 यूनिट्स पर डे इनटू एवरेज लीड टाइम इज लेट्स से 3 डेज. तो हर दिन तुम 10 यूनिट कंज्यूम करते हो, 3 दिन हो गए, मतलब 30 यूनिट कंज्यूम हो गए. तुमने ऑर्डर प्लेस किया और 30 यूनिट कंज्यूम हो गए, तभी भी सप्लायर ने क्या नहीं किया? मटेरियल डिलीवर नहीं किया. तो सप्लायर को तुम फोन करके पूछोगे ना, ससुरे क्या हुआ? तो रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इज इक्वल टू व्हाट? मिनिमम स्टॉक लेवल. अब ये मिनिमम स्टॉक लेवल का मतलब बेसिकली ये होता है फॉलो अप. दिस इज अ लेवल एट विच यू डू अ फॉलो अप. तो ठीक है, सप्लायर ने क्या किया? मटेरियल डिलीवर किया. डिलीवर करने के बाद आपका स्टॉक क्या हो जाएगा? वापस बढ़ जाएगा ना. ऑन ए स्क्रीन ऑर्डर प्लेस किया, इधर मटेरियल कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है. सप्लायर ने ऑर्डर प्लेस किया, आप ऊपर गए. ऊपर गए तो उसको बोलते हैं मैक्स लेवल. अब मुझे मैक्सिमम स्टॉक चाहिए. एक सिंपल दिमाग लगाना, स्टॉक क्या चाहिए? स्टॉक मैक्सिमम कब होगा? जब आपका कंजम्पशन मिनिमम रेट पे होगा. इफ यू कंज्यूम एट अ लोएस्ट पॉसिबल रेट, ऑब्वियसली स्टॉक विल बी हाईएस्ट. तो आ गया मैं मैक्सिमम लेवल पे. देखो शुरुआत कहां से हो रही है? रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन, मिनिमम लीड टाइम. दैट इज कंजम्पशन रेट इनटू लीड टाइम इज अ कंजम्पशन क्वांटिटी प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी. जैसे ऑर्डर इधर प्लेस किया, मिनिमम रेट पे कंजम्पशन हुआ और ऑर्डर आ गया. ऑर्डर आ गया मतलब जितना ऑर्डर का क्वांटिटी वो आ गया, तो आपका वो स्टॉक ऊपर चला गया. दैट इज मैक्सिमम लेवल. डू नॉट रिमेंबर एनीथिंग. Reorder level minus minimum consumption. Why minimum consumption? Logic I told you. I want a maximum stock. Plus what? Reorder quantity. Reorder quantity or EOQ. Or order quantity. Reorder quantity, order quantity, whatever you want to say. इसका क्या बोला हमने? Maximum level. फिर क्वेश्चन पूछता है एवरेज लेवल. ये बकवास है, इसका कोई मतलब नहीं है. हाफ ऑफ मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2. और दूसरा एक फॉर्मूला है, मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ EOQ. ये फॉर्मूला, दूसरा जो फॉर्मूला है वो अज्यूम करता है मिनिमम लेवल विल बी मेंटेन्ड ऑल द टाइम. कुछ भी हो मिनिमम लेवल रहेगा ही रहेगा. तो मिनिमम लेवल का एवरेज मत लो, जस्ट टेक अ हाफ ऑफ व्हाट? EOQ. हाफ ऑफ EOQ क्यों लिया मैंने? सुन लो, लॉजिक सुनो उसका. दिस इज नथिंग बट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ये लॉजिक बोला होगा मैंने. हाफ ऑफ EOQ का लॉजिक सुनो, क्योंकि आगे जाके काम में आएगा. इधर मैंने ऑर्डर आ गया, इधर दिस इज माय स्टॉक लेवल, दिस इज मिनिमम लेवल. मिनिमम लेवल पे हमारा सप्लायर ऑर्डर देता है. क्यों? वो है अजम्पशन, चुप बैठने का. इधर सप्लायर ने मटेरियल दे दिया, ये मिनिमम लेवल है. कितना है क्या है छोड़ दो, अज्यूम इट इज 0. 0 मटेरियल जब मेरा होता है तब सप्लायर ऑर्डर डिलीवर करता है. 5000 का ऑर्डर मैंने प्लेस किया था. सुन ला लॉजिक, ये क्या है? मिनिमम 0 लेवल है. सप्लायर ने ऑर्डर इधर डिलीवर किया, मेरा स्टॉक किधर गया? 5000 पे गया. हर रोज मेरा इवन कंजम्पशन होते रहेगा. 5000 से
4900, 4800, 4700, 4600, like this it is coming down, it will come down to 0. वापस सप्लायर से 5000 आ गया, गया 5 पे, आ गया 0 पे, आ गया बस ऊपर. If the consumption is taking place at even rate, it becomes arithmetic progression. It becomes arithmetic progression का एवरेज क्या रहता है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. यही चीज हमें आगे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लगने वाला है. तो हम बोलते हैं मिनिमम लेवल तो रहेगा ही रहेगा, उसको इग्नोर करो, उसका एवरेज लो ही मत. तो सिर्फ ईओक्यू का एवरेज लो, हाफ ऑफ ईओक्यू. एग्जाम में प्रेजेंट बोथ, प्रेजेंट व्हाट, बोथ द आंसर्स, एवरेज स्टॉक लेवल. तो बोलो 4 लेवल किए बच्चों हमने. चलो वापस रीऑर्डर लेवल बोलो. maximum possible consumption, reorder level is equal to max usage rate into max lead time plus safety stock अगर दिया रहेगा तो. ये reorder level पे ऑर्डर प्लेस किया, फॉलोअप कब होगा? उसके नीचे आके फॉलोअप होगा. तो फॉलोअप लेवल ऑब्लिक मिनिमम लेवल इज इक्वल टू reorder level माइनस एवरेज यूसेज रेट इंटू एवरेज लीड टाइम. एवरेज यूसेज रेट इंटू एवरेज लीड टाइम. समझा क्या रे? फिर मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल चाहिए तो रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी. एवरेज लेवल मीन प्लस मैक्स अपॉन 2 एंड अदर फॉर्मूला इज मीन प्लस हाफ ऑफ ईओक्यू. आर यू क्लियर? डेंजर लेवल, द लेवल एट विच यू प्लेस अ इमरजेंसी परचेस ऑर्डर विथ योर सप्लायर. इमरजेंसी परचेस ऑर्डर हम प्लेस करते हैं किसके साथ? सप्लायर के पास. कैसे निकालेंगे? एवरेज कंजम्पशन रेट इनटू इमरजेंसी लीड टाइम. नॉर्मली क्या होता है, इमरजेंसी में जब परचेस करना है, इट इज गोइंग टू बी सम डिफरेंट सप्लायर. सो डेंजर लेवल इज गोइंग टू बी वेरी लो. मतलब इफ योर स्टॉक गोज टू दैट लेवल एंड यू आर नॉट गेटिंग मटेरियल फ्रॉम योर रेगुलर सप्लायर, you should make a emergency purchase from some other supplier. Average consumption into what? Emergency lead time. Are you clear? Then how much should you order? ये तो क्वेश्चन थे. Reorder level ने क्या बोला? When should you place order? Minimum level ने क्या बोला? When should you do follow up? Maximum level tell me what is maximum possible stock. Average level told you what is on an average inventory that you will have. Danger level, when should you make a emergency purchase? But how much should you purchase at a time who tells us this? EOQ. EOQ is outdated concept because assumptions of EOQ are absurd. Assumption of EOQ क्या है? Number one assumption, you know annual usage. चलो ठीक है, I can. That is not a problematic. ये problematic assumption नहीं है. क्यों? हर एक बिजनेस को एस्टिमेट करके मालूम रहेगा एक साल में हम ऑन एन एवरेज कितना परचेस करेंगे. सबसे बड़ा ईओक्यू का प्रॉब्लम ये है, कान खोल के सुनना. ईओक्यू अज्यूम्स दैट इवन इफ यू परचेस मोर यूनिट्स एट अ टाइम, परचेस प्राइस डज नॉट चेंज. फॉर एग्जाम्पल, आई नीड 5 लाख यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल इन 1 ईयर. कितना चाहिए मुझे? 5 लाख यूनिट्स इज माई एनुअल यूसेज. दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. प्रॉब्लम क्या है? 5 लाख में से मैं 500 खरीदता हूं एट अ टाइम, या 5000 खरीदता हूं एट अ टाइम, या 50,000 खरीदता हूं एट अ टाइम. प्राइस पर यूनिट दैट सप्लायर विल चार्ज रिमेन सेम. अरे बाप ने रखा है, प्राइस पर यूनिट रिमेन सेम. अब मुझे बोलो, जो आदमी 500 खरीद रहा है एट अ टाइम और 50,000 खरीद रहा है एट अ टाइम, प्राइस इज सेम. मतलब एक मेरा ग्रोसरी स्टोर है, मैं आईटीसी से आशीर्वाद आटा खरीद रहा हूं 50 किलो का, और मैं डीमार्ट हूं, मैं आईटीसी से 50,000 टन का आशीर्वाद आटा खरीद रहा हूं, रेट सेम रहेगा. क्या पागलपन है. तो दिस इज द बिगेस्ट आउटडेटेड कॉन्सेप्ट, बट अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू टीच. सो व्हेन यू परचेस, बच्चों देयर आर 3 कॉस्ट्स. परचेस जब करते हैं ना तो 3 कॉस्ट रहते हैं. कौन से कॉस्ट रहते हैं? परचेस कॉस्ट, मतलब प्लस ऑर्डर करने का कॉस्ट रहता है, दैट इज योर सप्लाइंग, जो परचेस डिपार्टमेंट है उसका कॉस्ट है, विच इज योर ऑर्डरिंग कॉस्ट. और इन्वेंट्री एक बार आपके गोडाउन में आ गया तो उसका स्टोर करने का कॉस्ट होता है कैरिंग कॉस्ट. इन तीनों का टोटल आता है टोटल कॉस्ट. मेजॉरिटी क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी ऑन दिस टाइप. अब हम ईओक्यू डिसाइड करने के लिए इसको इग्नोर ही करते हैं. क्यों? तुम साल एट अ टाइम, ईओक्यू इज हाउ मच शुड आई परचेस एट अ टाइम, वेदर आई परचेस 500 एट अ टाइम और 5,000 एट अ टाइम और 50,000 एट अ टाइम.
purchase rate remains same. If rate remains same into annual usage, amount is also going to remain. So for calculating EOQ, we ignore purchase cost. We consider only ordering cost and carrying cost. What is our objective? Our objective is to reduce ordering cost or reduce carrying cost or reduce total of the two. Our objective is to reduce ordering cost plus carrying cost. दोनों का टोटल कम होना चाहिए. अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, यहां पर एक्स एक्सिस पे मैंने लिया ऑर्डर क्वांटिटी. इफ आई इंक्रीज ऑर्डर क्वांटिटी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम डाउन and my ordering cost comes down. But as order quantity increases, average inventory that I keep increases. This is carrying cost. And then we draw a graph of total cost. ये सब कुछ bullshit है. क्यों? Ordering cost is never ever fixed per order. इनके बाप ने रखा था ordering cost per order. अरे कौन से जमाने में बच्चों को सिखा रहे हो यार? ऑर्डरिंग कॉस्ट इज नेवर फिक्स लाइक अ पर ऑर्डर कॉस्ट. एक ऑर्डर का इतना कॉस्ट रहता है. ये क्वेश्चन में दिया रहता है इसलिए तुम ले रहे हो. ऐसा पर ऑर्डर कॉस्ट नहीं होता है. ये मुगल आजम के जमाने के कॉन्सेप्ट है. बिकॉज जाने दो, पास होने के लिए करना है. अभी अपना रिवीजन का ऑब्जेक्टिव है. सो ये आपका है टोटल कॉस्ट. ये आपका क्या है? टोटल कॉस्ट. Our objective is to keep total cost lower. Total cost is lower when there is a intersection of ordering cost and carrying cost. This is a point at which total cost is lowest. ये point हम derive करते हैं through this equation. EOQ is equal to under root of 2 into annual usage into ordering cost per order divided by carrying cost of carrying inventory per unit per annum. Carrying cost per unit per annum, right? This assumes that there is no discount. This assumes that there is no discount. कुछ समझा क्या? अगर डिस्काउंट आया तो आपको चेंज करना पड़ता है, एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है. वो स्टेटमेंट मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मुझे ये स्टॉक आउट वाला कॉन्सेप्ट विथ प्रोबेबिलिटी, आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन विथ प्रोबेबिलिटी एनालिसिस. तो ये स्टॉक आउट और इन्वेंटरी टर्नओवर का जो क्वेश्चन है, और ये ईओक्यू का एक क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करवा के लूंगा कल, बिकॉज वो क्वेश्चन 10 मार्क का मेरे को चांस लग रहा है. इस बार टैक्स नहीं डिफिकल्ट होगा, अकाउंट कॉस्टिंग लॉ ज्यादा चांस मुझे अकाउंट या कॉस्टिंग में से लग रहा है, क्योंकि लॉ की इसके पहले 2 बार बजा के रखी थी. इधर भी बजाने दो, तुम डरो मत. सो अगर बजाने का है, प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन आएगा कल, हम करेंगे इसको ईओक्यू के ऊपर. ईओक्यू का नहीं है वो, स्टॉक आउट के ऊपर. टुमारो